Hello everyone, good evening and welcome to the learning field. This is Chandan. So in this video, we are going to discuss that how I get admitted to PhD, how I joined PhD, right? So those who are seeing my post in my community section, and most of you are excited to know that how I joined this institute. What is the institute? So in this video, I will give you all the answer of your questions, right? So the name of the institute first. The name of the institute is IASST. So the full name is Institute of Advanced Study in Science and Technology. And the institute situated in Guwahati, Assam. Right. So this IASST basically a research institute. Okay. So in this institute, you get admitted only in PhD and some postdoc, right? So you can join as a PhD scholar or as a postdoc scholar. So here only research work is done in the institute, right? So this IASST institute is an autonomous institute under DST. So this is a DST Research Institute, Department of Science and Technology, Government of India, right? So this is an national DST Autonomous Institute, which is an research institute. Here you can do only your research, that is PhD or postdoc, right? Now, how can you get admitted into this institute? How to join, right? How to join IASST? How to join IASST? So first, जो है, you have to fill the form, right? You have to fill the form twice a year. You have to fill the form twice a year. मतलब कि एक साल में 2 बार फॉर्म आता है, ठीक है? जैसे कि जनवरी सेशन एंड अगस्त सेशन. नंबर 2, they take own admission test, right? Own admission test. Number 3, then the standard interview. So this is the main 3 process of get admitted into IASST, right? Now you can also join through ACSIR. I think many of you are know about this Academy of Science, I think, and ACSIR का फुल नेम आई थिंक एकेडमी ऑफ साइंस एंड इनोवेशन research. So this is an academy of government of India. This is a autonomous. This is a body of government of India. तो ये जो ACSIR है ना, इसके अंदर टोटल आई थिंक 87 रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है. जैसे कि जो CSIR का लैब होता है, ठीक है, जो CSIR का लैब होता है ना, वो सभी के सभी ये जो ACSIR का अंडर होता है. मतलब जो आपका PhD का डिग्री देगा ना, वो डिग्री जो देगा वो देगा ये ACSIR, राइट? तो जैसे कि IIT होता है, जैसे कि NIT होता है, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटीज होता है, तो ऐसे ही एक बॉडी है. मतलब जैसे कि सपोज कोई एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, IIT, कोई एक IIT है, जो मतलब आप IIT में जब जाओगे ना तो IIT ही डिग्री देगा. तो ये 87 इंस्टीट्यूट में जो डिग्री देने वाला है वो है दिस ACSIR. नाउ
The most important question, I think, come in your mind is that whether NET or GATE is mandatory. So for this institute, NET or GATE is not mandatory, right? So you can get admitted to IASST without NET or GATE, right? So this is the most important questions, and this is $1 million questions because of, and one of the more important thing is fellowship, right? So you can question me, sir, fellowship मिलेगा कि नहीं मिलेगा without NET or GATE? So yes, you get fellowship. The amount is same as JRF, right? Same as JRF. So I think now you are laughing that yeah, without NET or GATE, you can get into this institute and you can get the same fellowship amount as you can get through admission through GATE or NET, right? तो दिस ये आई थिंक आपको नो, आई थिंक नहीं, आपको मिलेगा जो है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप आपको मिलेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप आपको मिलेगा ड्यूरिंग योर पीएचडी, एंड जो प्रोसेस होता है बाकी सब वो तो सेम ही है, ठीक है। नाउ जो ये इंस्टीट्यूट है, क्या क्या डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो एक तो है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी 3 फैकल्टी है, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री ऑब्वियसली मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब तो होगा ही, ठीक है। और एक दो आई थिंक है एग्रीकल्चर बोल के, हो सकता है, ठीक है, मेरे को ठीक से पता नहीं तो मैं नहीं देखा है, तो आप लोग मतलब है तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिजिक्स का बहुत फैकल्टी है, ठीक है। मैथ्स का अभी 3 फैकल्टी है, तो मैथ्स का डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है, बट मैं कैसे यहाँ पर एडमिटेड हुआ हूँ ये आपको बता दूँ, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्म मैंने फिल किया था वो आया था आई थिंक 12 सितंबर को फॉर्म आया था, ठीक है। 12 सितंबर को फॉर्म आया था 2024 फॉर जनवरी 2025 सेशन, राइट, फॉर जनवरी 2025 सेशन। और एक चीज, आपको यहाँ पर एडमिटेड होना है, मतलब ज्वाइन करना है पीएचडी, आप टारगेट कर रहे हो तो आप बीच बीच में वेबसाइट देखते रहना, क्योंकि ये जो फॉर्म आता है, मतलब जिस दिन नोटिस आता है ना, जिस दिन नोटिस आता है प्लस 15 डेज ही होता है ओनली फॉर्म फिलअप के लिए, ठीक है। तो मतलब 12 सितंबर को आया, देन यू गेट ओनली 15 डेज फ्रॉम 12 सितंबर, आई थिंक 15 या 20 डेज का ही आता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा ये 2 टाइम्स मेरा मतलब पिछल गया था फॉर्म फिलअप, ठीक है, क्योंकि 15 डेज मैंने देखा नहीं, फॉर्म आ गया एंड फिलअप भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो बीच बीच में आपको देखना रहेगा, मतलब देखते रहना चाहिए कि फॉर्म आएगा, मतलब आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो जनवरी सेशन के लिए तो यही है। नाउ और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, तो मैं अभी जिस फील्ड में हूँ वो है अप्लाइड मैथ, ठीक है, अप्लाइड मैथ, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स का टीचर है एक यहाँ पर, एंड और आई थिंक एक सर है स्टैटिस्टिक्स का, एक है, और एक कंप्यूटर साइंस का है आई थिंक, ठीक है। तो मेरा तो मैथ्स है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, एंड मैं यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स में एक सर के अंडर मतलब अभी एडमिशन लिया हूँ ऑन 1 जनवरी 2025। तो यही था थोड़ा बहुत बात, मैं क्या बोलूँ नाउ। ओके, तो और एक चीज़ बता दूँ मैं नाउ, यू कैन क्वेश्चन मी दैट सर the questions and about interview, right? Questions and interview, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बात कर देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह कैसा क्वेश्चंस आया था वो मैं और एक वीडियोस में डिस्कस करूंगा, ठीक है।
मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स के बाद याद करके एक नोटबुक में नोट कर लिया, ठीक है। वो मैं और एक वीडियो में बोल दूंगा, ठीक है। मतलब तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह है जैसे कि आईआईटी वगैरह है, तो वहाँ पर जो आफ्टर गेट भी या फिर आफ्टर क्वालिफाइंग नेट यू हैव टू गिव सम रिटन एग्जाम ऑन दैट इंस्टीट्यूट। ओके, सो वो कैसा होता है उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस मेरा केस में आया था 50 क्वेश्चंस आया था, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आया था, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस में क्या क्या था, 10 था जनरल एप्टीट्यूड का, जीए, एंड 40 क्वेश्चंस था सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट का। एंड ये जो क्वेश्चंस था यहाँ पर 10 क्वेश्चंस ही था। तो यहाँ में क्या था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का जो जनरल एप्टीट्यूड जैसा होता है ऐसा ही सेम था। बस कुछ जो क्वेश्चंस था ना वो थोड़ा कोर फिजिक्स का था, कोर केमिस्ट्री का था, तो मैंने आंसर नहीं दे पाया। एंड यहाँ पर 40 जो सब्जेक्चुअल क्वेश्चन है ना पूरा नेट का सिलेबस के ऊपर ही आएगा, ठीक है। नेट का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मतलब ठीक ठाक दिया था। देन मेरा क्या हुआ, मेरा आई थिंक मेरा जो था 8 दिसंबर को मेरा 2024 को मेरा था रिटन एग्जाम, राइट। तो 8 दिसंबर 2024 था मेरा रिटन एग्जाम। देन उसके बाद 8 दिसंबर 10 AM टू 12 PM तक मेरा एग्जाम चला, ठीक है। तो ये था क्वेश्चंस का सिलेबस। एंड यहाँ पे नेट का जो क्वेश्चंस है वही आता है। ये मैं एक दूसरा वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, जितना क्वेश्चंस मेरे को याद है, ठीक है। मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन आया था मैं एक डिस्कस कर दूंगा, ये अनदर वीडियो, ठीक है। आप थोड़ा बहुत कमेंट में लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, अनदर वीडियो। नाउ ये क्वेश्चन आया था। देन 8 दिसंबर को ही मतलब 7 PM टू 7:30 PM रात को, ठीक है। तो एट नाइट रिजल्ट आ गया, ठीक है। 7:30 PM नाइट को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आई एम सिलेक्टेड, तो आई एम सिलेक्टेड। एंड देन उसके बाद 9 दिसंबर ही था मेरा इंटरव्यू। 9 दिसंबर 2022 था मेरा इंटरव्यू। एंड मेरा फर्स्ट था इंटरव्यू लिस्ट में, मतलब फर्स्ट नाम था लिस्ट, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, ठीक है। तो मेरा मतलब फर्स्ट इंटरव्यू था। एंड आई थिंक 10 12 या 13 तक मैंने गया इंटरव्यू में। एंड मेरा इंटरव्यू लगभग 25 मिनट्स चला था, ठीक है। 25 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ, ठीक है। तो मेरा पैनल में इंटरव्यू, पैनल में 3 सैर्स थे टोटल, 2 सैर्स एंड एक मैम थे। तो मेरे को क्वेश्चंस वगैरह किया, ठीक है। तो वो क्या क्वेश्चंस किया वो मैं और एक वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो यही था प्रोसेस। तो चलो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ इंटरव्यू कैसा हुआ है, इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं जब फर्स्ट गया तो एक सर था, ठीक है। एक सर ने बोला सिट एंड इंट्रोड्यूस, ठीक है, सिट एंड इंट्रोड्यूस, सिट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। देन सर फास्ट एकदम स्टार्ट कर दिया, डू यू नो ओडी, डू यू नो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई से यस सर। देन बोला लेट्स फास्ट स्टार्ट विद ओडी, राइट। देन बोला जो है फास्ट जो होता है ना वो फास्ट वाला क्या होता है, जो फॉर्म होता है ना dy/dx प्लस py=q, ये कौन सा फॉर्म है, ये मेरे को पूछा, बोला कि ये फॉर्म कौन सा है। तो मैंने बोला सर ये ऐसा है। देन बोला ठीक है, तो नाउ आई विल गिव यू एन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने को एक पेंसिल एंड पेपर दिया। फिर बोला कि नाउ आई विल गिव यू एन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बोला, मैंने बोला कि ये सर। देन सर ने दिया कि dy/dx प्लस एक्स आई थिंक, या फिर माइनस dy/dx इक्वल टू एक्स, आई थिंक ये दिया। बोला सॉल्व इट। देन मैंने सॉल्व किया। देन इसका जो आंसर आया, देन वो बोला देन इफ वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू इनिशियल वैल्यू टू प्रॉब्लम देन व्हाट इज नीडेड। मैंने बोला सर इनिशियल कंडीशन नीडेड। देन सर ने बोला कि नाउ आई विल गिव यू द इनिशियल कंडीशन y0 = 0। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा y = x² ही आएगा आई थिंक, ठीक है।
आफ्टर पुटिंग द वैल्यू। देन बोला व्हाट इज दिस ग्राफ, तो मैंने बोला सर पैराबोला आएगा। बोला ड्रॉ दिस, तो मैंने ये ड्रॉ किया। देन बोला व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, तो मैंने बोला सर वाई एक्सिस है मेरा, ठीक है। तो ठीक है, देन सर ने बोला कि डू यू नो द टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बोला ये जो टाइप्स वगैरह है वो तो मैंने बोला। देन सर ने पूछा डू यू नो द, वो क्या होता है, ये जो फॉर्म होता है ना, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टू दी पावर एन, बार्नौली बार्नौली, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। देन सर ने बोला कि डू यू नो द बार्नौली फॉर्म, मैंने बोला यस सर। बोला राइट दिस, तो मैंने ये ले बोला। देन बोला हाउ टू सॉल्व दिस, तो मैंने बोला कि सर बार्नौली इक्वेशन से तो आई थिंक ये ऐसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई करते देन सॉल्व करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते। बोला यस, बोला ठीक है। तो देन बोला डू यू नो इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैंने बोला यस सर। तो बोला व्हाट इज द नीड ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैंने बोला कि जो इक्वेशन आई थिंक ओ एग्जैक्ट ने पूछा फर्स्ट, बोला कि एग्जैक्टनेस कंडीशन बोलो। देन बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जैक्टनेस कंडीशन बोला, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला। देन बोला कि इसका ज़रूरत क्या है, ऐसा 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 पूछा, पूछते गए। मतलब वो सर ने ऐसे पूरा के पूरा ओडी एंड पीडी के ऊपर ना 12 मिनट्स, आई थिंक 12 to 14 मिनट क्वेश्चन पूछा पूरा। फिर पीडी का शायद वो पूछा था कि टाइप्स ऑफ पीडी बोलो। देन जो लिखते हैं ना एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो इसी के ऊपर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो बोलते हैं ना, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, मैंने ये भूल गया था। देन सर ने थोड़ा हिंट दे दिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है ना वही होता है ये। तो ये मेरे को देन ये वाला आंसर दे दिया। देन इस तरह से हो गया। देन जो था मतलब यहाँ पर जो सर है वहाँ पर हाइड्रोडायनामिक्स का था सर। तो मैंने क्योंकि देखा था जब मेरा वो एप्लीकेशन का फॉर्म आया था ना, तब रिसर्च एरिया मेंशन किया था कि अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स, राइट, हाइड्रोडायनामिक्स। तो ये था। तो हाइड्रोडायनामिक्स मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के गया था। हाइड्रोडायनामिक्स जो अप्लाइड मैथ्स का बैकग्राउंड से है वो आई थिंक जानते ही हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हाइड्रोडायनामिक्स पोर्शन से। तो देन वो सर ने पूछा कि व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। देन मैंने बोला व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक्स इक्वेशंस, तो मैंने बोला कंटिन्यूटी इक्वेशंस। और फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने थोड़ा बोला व्हाट इज फ्लूइड, ये सब वगैरह वगैरह बोला। देन कंटिन्यूटी इक्वेशंस एंड द, मैंने बोला कि जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस है वो। देन सर ने बोला राइट दिस, तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन मैंने लिखा। देन यहाँ से सर एक एक टर्म से मतलब क्वेश्चंस किया, ठीक है। तो मैंने आंसर दिया थोड़ा बहुत। देन यहाँ पर जो मेन टर्म होता है ना वो कन्वेक्शन टर्म एंड डिफ्यूजन टर्म। तो आप देखोगे तो ये है, जो लोग फ्लूइड या फिर मैकेनिक्स पढ़े हो ये यहाँ पर क्वेश्चन से आप देख सकते हो। एंड सर और एक क्वेश्चन पूछा था थी जो ये वगैरह इक्वेशंस वगैरह कहाँ से आता है, ठीक है। तो आप आई थिंक यू ऑल नो दैट ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास से आता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, एंड ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ मास फोर्स जो फोर्स का था ना वो वहाँ से आता है, ठीक है। तो ये पूछा था। देन बोला कि ये लिखो एंड या जो टर्म है एक एक टर्म, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस किया मैंने। मतलब थोड़ा बहुत आंसर दिया, कुछ कुछ नहीं मतलब नहीं हुआ था मेरे। तो सर ने मतलब हिंट दे दिया था, या फिर नहीं बोल सकते तो सर मतलब बोल दे रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक है। मैंने एक दो मतलब उल्टा पुल्टा भी बोल दिया, तो सर ने बोला कि नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो मतलब देन ऐसा ही चला मेरा इंटरव्यू। तो आई थिंक ओडी मतलब मैं जाकर इंटरव्यू में जस्ट रूम में एंटर किया। देन बोला सिट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ माय सर। तो ऐसा एक टेबल था, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर थे, यहाँ पर एक मैम थे एंड यहाँ पर और एक सर थे। तो मैंने यहाँ पर बैठा। देन ये सर ही मेरे को क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है। तो बोला डू यू नो डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बोला यस। तो ये सर पूरा के पूरा मेरा ओडी से एंड पीडी से मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बेसिक से मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया। देन ये सर फ्लूइड का था, ठीक है। तो ये सर फ्लूइड से मेरे को ये सब क्वेश्चंस वगैरह पूछा। देन लास्ट में ये एक मैम था, तो मैम ने मेरे को बोला ठीक है आई विल नॉट आस्क यू एनी टेक्निकल क्वेश्चन, जस्ट 1 or 2 क्वेश्चन। तो मैम ने बोला तुम कौन सी साल में मतलब एमएससी किए हो, कहाँ से किए हो, देन
क्या कर रहे थे इस ईयर्स में, ऐसा थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा तो मैंने आंसर दिया। देन बोला कि ओके थैंक यू। ठीक है। तो मतलब मेरा इंटरव्यू जो गया था पूरा के पूरा जो है डायरेक्टली ओडी पीडी से क्वेश्चंस पूछा, तो मतलब मैंने इंटरव्यू ठीक ठाक ही दिया था। एंड यहाँ से फ्लूइड भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ के किया, क्योंकि ये हाइड्रोडायनामिक मेंशन किया हुआ था। ठीक है। एंड मैंने एक बार वो मतलब क्या बोले, वही था मतलब इंटरव्यू में। तो देन इंटरव्यू दे दिया। देन उसके बाद मेरा आई थिंक 19th, ये तो इंटरव्यू हुआ था मेरा 9 दिसंबर को। ठीक है, 2024। देन 19 दिसंबर को आई थिंक, दिसंबर को 2024 में लाइक 4 या 5 PM आफ्टर, मतलब आफ्टरनून लिस्ट आ गया। ठीक है, लिस्ट आ गया, लिस्ट, एंड आई एम सिलेक्टेड, राइट, आई एम सिलेक्टेड एज IJRF, एज ए IJRF मतलब इंस्टीट्यूशनल जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, तो मैंने मतलब बहुत साल की मेहनत किया हूँ। तो आप लोग जानते ही हो जो मेरा यूट्यूब फॉलो करते हो, ठीक है, कि मैं नेट के लिए या फिर जो नेट से नहीं होता ऐसा भी, जो मतलब जो जितना किया जहाँ पर मतलब ट्राई कर रहा था कि हो जाए हो जाए हो जाए, बहुत फेलियर से भी मैं गुजरे हूँ, आप लोग जानते ही हो, बहुत बहुत। तो अभी मेरा यहाँ पर इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन हो गया पीएचडी में ऑन 1 जनवरी 2025 विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप। एंड इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी एज जेआरएफ अमाउंट सेम ही है। तो मेरा तो अभी तक नेट नहीं है या फिर गेट भी नहीं है। ठीक है, तो जो है मेरा नेट पीएचडी है ओनली। तो वो मैंने इंटरव्यू में पूछा था नेट पीएचडी वाला, ये तो है मेरा नेट पीएचडी। तो ये मैंने फॉर्म में नहीं डाला था क्योंकि वहाँ उस टाइम जो है रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने नहीं डाला था। बट इंटरव्यू में मेरे को मैंने मैम को बोला कि मैम मैम ये मेरा नेट पीएचडी क्लियर है, तो बोला ओके ठीक है। देन इंटरव्यू में सिलेक्टेड हुआ एंड आई ओनली, मतलब एक को ही लिया, एक पर्सन, वन इज सिलेक्टेड, ओनली वन इज सिलेक्टेड, एंड दैट इज मी। ठीक है, तो एक मतलब एक को ही सिलेक्ट किया एंड दैट इज मी, राइट। So this is the story. And if you have any questions regarding this, then you can definitely comment in the comment section below. In the next video, I will discuss the questions, and in that video, you will get your queries, answer of your queries or questions, right? तो कुछ मिस किया है तो मतलब आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में डाल देना, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लिस्ट कर दूंगा। मतलब जितना मेरे को याद है एक नोटबुक में एग्जाम के बाद में मैं लिख लिया था, तो आपको डिस्कस कर दूंगा कैसे होता है, आपको भी मतलब या पता चल जाएगा। ठीक है, तो एंड सॉरी बिकॉज ऑफ मेरे पास उतना इंस्ट्रूमेंट या फिर सेटअप नहीं है अभी। अभी मैं एक नया रूम में यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, मतलब यहाँ पर आकर। ठीक है, तो उतना सामान मतलब इंस्ट्रूमेंट या फिर सेटअप मेरे पास नहीं है। वो थोड़ा जोड़ पोड़ के ये वीडियोस में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कमेंट भी आ रहा था एंड वीडियोस भी नहीं डाला था। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट। कुछ क्वेरीज है, कुछ चला गया बाद में, ठीक है, तो आप एक बार मेरे को मतलब कर देना, ठीक है, कमेंट। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।